जैसे कि आप सबको मालूम है, डॉक्टर जुबेदा तुंगड़ी को 32 इयर्स का न्यूट्रिशन का एक्सपीरियंस है और उनका एक्सपर्टाइज है वेट मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन, डायबिटीज, कार्डियक, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी, किडनी डिसऑर्डर्स, गट हेल्थ एंड आईबीएस, थायराइड डिसऑर्डर्स, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड बोन हेल्थ केसेस। आपका स्वागत है डॉक्टर। गुड इवनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डॉक्टर जुबेदा तुंगड़ी आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि ये हम हर्बल टीज पे बात कर रहे हैं, तो हाउ फॉन्ड ऑफ हर्बल टीज यू आर? Very fond of. My herbal tea connection goes back to my childhood days because my mother really loved, giving us brews of lemongrass, cinnamon. She loved these things. She used to get these things and make it, brew them, and I always loved having them and feeling refreshed. I really would want to have too much of, milk brewed teas, over brewed teas. I like these light brews. So in my regular use also, I use chamomile, I use rosemary. I love these two. And they keep me very alert and help me do my work. Okay. So, madam, will you classify herbal tea as a medicine, nutrition, or simple food? In which I would category you say no. keep it? I use that as a nutritionist. For me, anything which helps me alleviate a person's health problem, it becomes therapeutic. And I would not say we are curing it by itself. It's a holistic experience. When I give you a balanced diet and I include these herb brews, so together with lifestyle changes, they are able to undo the disease process. So from disease or degeneration to wellness is what a good nutrition will look at. So I would say, yes, it can become medicinal. Say if you have a very bad cold and you have a decoction of lemongrass, ginger, and say some amount of nettle leaf, because it will give you a decongesting effect. So it becomes medicinal. It can become therapeutic. It can just be okay for joy. Like if there's an evening and I just want to relax, I will go and have a chamomile brew. I can make it like an iced tea, and that helps me relax a lot better. So any which way, nutrition is a science and an art. Got to use it with that kind of passion. Very good. So, which herbal tea you like? Which one you like most? The best, the most favorite is mine today. It is chamomile after lemongrass. Because I think, after a day's work in the evening around, I just had my chamomile brew. I said, if I have my brew, because I've seen a lot of patients in the morning, so it's a long day, and then that brew just helps you relax, unwind, feel happy. So chamomile is my favorite. More about chamomile tea so that our viewers understand more about chamomile tea. So chamomile is a dry flower, yes, and you can just put it in hot water, keep it for 5 minutes, and you can have the decoction twice, thrice over. It will calm you. It will, remove any kind of negativity, or if you're very tired, mentally if you're very fatigued, it helps you clear, makes you feel very calm. It induces better sleep. For those who are very worked up and, they cannot sleep at night, I would advocate that chamomile brew as the best brew for a late evening, or even say with dinner or post dinner. Chamomile works wonderfully in making a person feel relaxed and have his better deep sleep score, because we all know that in today's time we have got disturbed sleep wake cycles. We're not sleeping well, we're not having enough of deep sleep. So chamomile can be the answer, rather than having a sleep drug which can make you feel groggy the next day and make you feel like a hangover. I think this chamomile is a wonderful thing. Chamomile has got a lot of wonderful antioxidants as well. So people who also have got water retention, who feel bloated, or who have got a weaker digestion, even they can look at chamomile brew. That's why I said you can have it with your meal as an iced tea. You can have it post meal. You can have it in the evening time. It's a lovely drink. Put in some chia seeds, it becomes more wonderful to improve your gut. See, in today's time, since the pandemic, a lot of people have come up with, disturbed sleep-wake cycles, altered gut. Gut function is reduced or not as effective, or they feel that they are constipated, they are not happy. So I think when you combine things like, say, chamomile and chia, it's wonderful. Chamomile and lemongrass and ginger, still more helpful for people who have water retention, who can't sleep, or those who have got slightly elevated blood pressures. When their chamomile works. Madam, my next question is,
can we say that by taking herbal teas, we can moderate and correct our body functions to some extent without experiencing side effects of medicines? And any example of such herbal teas you can give? Definitely, definitely. See, in today's times where you have longevity, people are living for longer years, and people are wanting to reduce dependence on medicines. Or if you have the slightest of disease or illness, like say, you just feel that you are heavier on the belly, can't digest food, or if you have got slightly elevated blood pressures or elevated blood sugars, what we call as pre-diabetes, pre-hypertension, such people can definitely look to using herbs. Like if I talk about, say, rosemary. Rosemary will enhance, your alertness, your activity, your recall, your memory. It also will help you in wound healing. It is also known to help you, say, in fatty liver disease, which is so commonly seen in nowadays. So I think, anybody who has some kind of signs of degeneration or illness, when you are going to a doctor and you say you have a headache, that headache could be because of, say, blood pressure, or say you're not sleeping right. And so if you include things like, say, chamomile in the evenings, rosemary towards the evening in the daytime, you can have the rosemary as a brew. You can crush the rosemary dry leaves into your salads, into your stir fry vegetables. I think the impact is wonderfully notable. You can see the difference for yourself. Like I recently, tried a juice with fresh rosemary leaves with grapes. It's there on my YouTube, and with gooseberry into my salads. And I feel whenever I have these things, I am more active, more agile, and more hands-on with my work as well. So anybody who's at work and feels that these things can be used to improve his work performance or reduce drugs that he was, like people who are doing, who have blood pressure and who have come to me, and I've introduced to them hibiscus brew. Hibiscus is the flower we all know, that which is called as jaswan, the red flowers which is normally given to Lord Ganesha. We also have hibiscus in yellow, white, pink colors. Hibiscus fresh or dry. Now those areas where you can't get the fresh hibiscus flower, they can look at using the dry hibiscus. Now just put it in hot water for, say, 5 minutes and let the decoction brew. It'll seep through, and you can have the strained liquid twice, thrice in the day. You will see a remarkable decrease rather, in your blood pressure, systolic and diastolic. So I have seen doctors reducing the drugs required by the patients to almost half, like 80 becomes 20. Of course, I would say that I work on the person's holistic diet. I help the person with good nutrition so he would undo the negative factors present in food, like reducing on those trans fatty acids, the fried foods, extra salty foods. So this, along with these brews together, has a wonderful protective, preventive, and reversing impact. So, madam, nowadays there are a lot of tension in the everyday's life, especially in the last 2 years of the pandemic, and after that, work pressure and so many other family pressures. People are experiencing a lot of pressure and tension. So, do you think that this rosemary and chamomile can help people in reducing Definitely. the work pressure and tension? Definitely, And yes. See, because I've read up, a lot of research studies since I got interested in these herb brews and to see whether they are toxic or not. So I feel that anybody who takes about a tablespoon in a glass of hot water, even twice, thrice in a day, is completely safe. And you have to try it to see the difference it makes to your wellness score. See, you have a wellness score, you have a disease score, you have symptoms, and you have you have these feelings within your body. So if you try these things with the right kind of diet approach, I repeat that a good diet is the premise, where your gut stays healthy. And when you bring in these rosemary brews or the chamomile brews, see, rosemary I always recommend in the daytime. So, early morning or mid morning or say before lunch, post lunch. And chamomile is, after 4:35, it helps you unwind. Definitely you'll see that you're able to handle your stress in a better manner. You won't get so agitated. Because I feel half the time people are just like, just trying to fly off the handle. So for such people, it really works. It can make you calm. madam, you have used Best Source Nutrition's chamomile, rosemary,
or hibiscus. How do you Yes. find the quality and I find that the quality is really great because I've been using it for more than almost 3 to 4 years, and I feel the quality is great. The way it is packed with flushing, there is just no worms, nothing. It stays as fresh till the last. We see, make sure that we use every single yeah, part of nitrogen your flushing is packet. done? Yes, Yes. it is really wonderful, fresh and clean. Because with the And I nitrogen believe flushing, the experience, the expiry date and I would say that it yes, proves. since you're giving us I have seen your reports, where you've given us single reports of its power, its clarity, its cleanliness, its authenticity. So I have great confidence in Yes, the madam. products made by That Best way Source. I can say that Best Source Nutrition is the only company in the herbs market which is doing the lab test for all nutritional value, chemical studies, and heavy metal testing and microbiological testing before packing the product. So our all herbs goes through all this kind of stringent testing. Highly So appreciate and recommend this. That because people have tried some tea bags from somewhere, and they try out these pure and clean herbs. They always say that yes, we want more. We'll repeat it again. can you give any experience of your trying chamomile tea in your client? I can talk about a recent case. This gentleman has, advancing kidney disease. He's very stressed. He heads a company. He's a vice president, and he had a creatinine of almost 6, and highly stressed, late hours of work, eating whatever, whenever, no great balance in his macros and his micros in his diet. So when we put his diet in proper order, we balanced his carbohydrates, his proteins, and we helped him with reducing on his sodium potassium scores. His bloating has come down, his urine output is better, he's sleeping better, his blood pressure has come down, his sugars are normal. And yesterday I saw that his creatinine has come from 6 to 4. So I feel, this is an extreme case, happened last evening, and I was like so elated, so happy. It makes you feel happy with your own work. It feels gratifying that your efforts have seen through. So using a good diet, I teach even my patients a lot about pranayam. I tell them to sleep between say 11 and 5. There are students who join me and they say that we are studying in the night. I say no, you better sleep between 11 and 5 and then wake up and study, and you see your recall, your memory. So along with lifestyle inputs, diet inputs, I bring in these herbs. So I think it has to be a proper counseling done to the patient, whether young or old, man or woman, any part of the globe. Today, geography is history. So I am consulting patients all over the globe, and I feel that I have great results. Chamomile टी और rosemary किस 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 conditions में उनको फायदा करेगा? ओके, सो रोजमेरी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, कार्नोसॉल है, कार्नोसिक एसिड है, रोज मैरिनिक एसिड है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, रोजमेरी एक हरा पत्ता होता है। अब ये रोजमेरी के जो पत्ते हैं, आप इसको फ्रेश खा लो सैलेड में या जूस में, या उसका ड्राई वर्जन जो हमें आपके यहाँ से मिलता है बेस्ट सोर्स से, आप उसको उबाल के उसका उकाला बना के पी लो, या उसको आप गर्म पानी में डाल के ढांक के रख के छान के पी लो। मैंने देखा है कि आपकी मेमोरी यानी कि याद शक्ति, या मैं कहती हूँ रिकॉल, रिकॉल मतलब कि आपने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो आप मुझे अभी सुन रहे हो, उसको याद कर पाने की और सही वक्त पे उसको याद कर पाने की शक्ति, रिकॉल अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आई थिंक रोजमेरी का उकाला आप पी सकते हो। और जिन लोगों को नींद की थोड़ी सी समस्या है, जो रात को सोते समय महसूस करते हैं कि नींद नहीं आ रही है, कुछ वो लोग क्या ये कैमोमाइल टी ले सकते हैं? मैं तो कहूंगी जिन लोगों की नींद अच्छी नींद में जिनको प्रॉब्लम्स होता है, या जो गहरी नींद नहीं कर पाते हैं, जो अपना दिन भर का स्ट्रेस साथ में बिस्तर में ले जाते हैं, आई थिंक फर्स्ट तो उनको दे शुड हैव 3 गुड लाइफस्टाइल मेजर्स। एक है कि आप कंप्यूटर्स और मोबाइल्स को आप बाई 9:30-10 उसको आप खुदा हाफिज कर दो, बाय बाय बोल दो, शट इट ऑफ। दूसरा, आपका जो आप जो चाय पीते हो, चाय कॉफी पीते हो, दूध की काली चाय जो बनाते हैं या कॉफी जो पीते हैं, उसको 4-5 बजे के पहले पी लो, क्योंकि ये आपको स्टिमुलेट करता है, आपकी नींद खराब करते हैं। तीसरा, आप मैग्नीशियम वाले फूड्स खा सकते हो, जैसे कि नट्स है,
फ्रूट्स हैं, इनको आप अच्छे से खाइए। जैसे कि मैं कहती हूँ कलौंजी की सीड्स है विद खजूर खा लो, या तिल के दाने खा लो, सनफ्लावर पंपकिन सीड्स का आप ज्यादा उपयोग करें। और साथ में आप लेकर आएंगे कैमोमिल का ब्रू, जो मैंने लोगों को बताया कि 5-6 के टाइम पे एक बार ब्रू पी लो, फिर उसी पत्तों को बाद में एक बार और उबाल के पी सकते हैं अराउंड 8:39। आपकी नींद की जो क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। आप खुद कह पाएंगे आफ्टर 7-8 डेज के मैं सो पा रहा हूँ, मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, मैं चिड़चिड़ा कम हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर भी बेटर है, और मेरा दिमाग भी चुस्त रहता है सुबह उठते पर। डेफिनेटली। एक एक व्यूअर है, उन्होंने डाइटिशियन है शायद, उन्होंने मैसेज दिया है कि नेटल टी इज माय फेवरेट फॉर किडनी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है नेटल टी के साथ? Oh yes, nettle leaf tea is another favorite because आजकल के जो पेशेंट्स आ रहे हैं विथ हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर इज लिंक्ड विथ मेटाबॉलिक डिजीज, आप कहते हैं ना कि किडनी डिजीज से भी है, हार्ट से भी जुड़ा हुआ है हाई ब्लड प्रेशर। सो आई फील नेटल लीफ टी एक डायूरेटिक है, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपके किडनी फंक्शन को बेहतर करते हैं। किडनी आपको सबको पता है जो आपका गुर्दा है, यस, या आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो अगर आपने नेटल लीफ टी का उकाला बना के पी लिया, सो आपका किडनी फंक्शन, आपका यूरिन आउटपुट बेहतर होगा, और आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं, एक्स्ट्रा सोडियम पोटेशियम, वो आप उसको निकाल बाहर कर सकते हो अच्छे से। तो डेफिनेटली मैंने देखा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, फिर सीकेडी जिसका क्रिएटिनिन 1.52 पर भी होता है, अगर वो यूज करें उनको फायदा होगा। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए फायदा करेगा। जिनको किडनी स्टोन्स है उनके लिए भी दिस इज लाइक न्यूट्रलाइजिंग, इट बी लिथोट्रिपिक, मतलब ये स्टोन्स को ब्रेक करता है, तोड़ता है। यहाँ तक का मैंने रिसर्च स्टडी देखी थी, और मैंने एक पेशेंट में भी अपने फायदा देखा था कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स में भी, गॉल ब्लैडर मतलब कि जो पित्ते होता है आपके लिवर के बाजू में एक थैली होती है गॉल ब्लैडर, जो आपके लिवर में से बना हुआ बाइल जूस को जमा करता है। तो अब ये जो बाइल जूस और जो लिवर फंक्शन में भी नेटल लीफ का बहुत उपयोग है। हमने रिसर्चेस भी देखे और हमारे कुछ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में देखा है कि वहां भी गॉल स्टोन्स भी टूटे हैं और निकले हैं। तो आप कोलेलिडियासिस और कोलेसिस्टेक्टमी से बच सकते हो, मतलब कि गॉल ब्लैडर, पित्ते के पत्थर और उसकी सर्जरी से बच सकते हो। नेट लीफ का वहां फायदा है, फिर किडनी फंक्शन में फायदा है। तो आपका जो सब कहते हैं एडवांसिंग किडनी डिजीज, जो किडनी डिजीज कैसे होती है, जिन लोगों में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो उन लोगों के किडनीज के लिए भी नेटल लीफ का बड़ा फायदा है। नेटल लीफ का उकाला 2-3 बार पीने से बड़ा फायदा है। एक और मजे की बात अगर मैं बता सकूं, नेटल लीफ में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है कॉल्ड एज लाइसीन। अब लाइसीन ना एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारे गेहूं वगैरह में नहीं है। तो बाहर के देशों में लोगों ने नेटल लीफ का पाउडर भी जैसे कि पास्ता में, ब्रेड्स में यूज किया है लाइसिन की कमी पूरी करने के लिए। तो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड जिसकी कमी से हमारी प्रोटीन की कमी हो जाती है। सी प्रोटीन्स का अगर मैं थोड़ा बता सकूं, प्रोटीन्स हमारे होते हैं कंप्लीट, इनकम्प्लीट, गुड, यस, गुड कंप्लीट प्रोटीन्स, और होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, सेकेंडरी। सो कंप्लीट प्रोटीन्स हमें कब होते हैं, जब हमारे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम एक साथ में, जैसे कि एग को हम मानते हैं एज न्यूट्रिशनिस्ट is a complete protein. Egg is a complete reference protein which has all the essential amino acids. अब एग की तुलना में दूध भी अच्छा है, दूध का बना पनीर, दही, चीज, ये भी अच्छा है। फिर अपना आता है मटन, चिकन, मछली, प्रॉन्स, क्रैब्स, बीफ जो खाते हैं, ये सारों में फर्स्ट क्लास कंप्लीट प्रोटीन्स है। पर जैसे कि अपना जो हम धान खाते हैं, गेहूं, चावल, नाचनी, जवार, बाजरा, दालें, इन सब में एक आध अमाइनो एसिड कम होने से ये हो जाते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि हमारे इनकम्प्लीट, जैसे कि गेहूं का आटा या हमारा मूंग दाल, अगर हमने इसमें भी थोड़ा सा नेट लीफ का पाउडर डाल दिया तो उसमें जो लाइसीन की ज्यादा पोटेंशियल है वो डालने से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि जो जिनको किडनी डिजीज है उन लोगों के लिए नेटल लीफ बड़ा फायदा करेगा, बिकॉज उनके लिए एक तो चाहिए प्रोटीन्स जो कंप्लीट हो, क्योंकि इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो प्यूरिन प्रोटीन्स है जो दाल वगैरह से मिलते हैं, ये ज्यादा आपको देंगे लोड ऑफ यूरिक एसिड, तो ज्यादा किडनी पे आपके बोझ आता है।
सो अगर हमने इसी से यूरिक कम करा, एक क्वेश्चन लोगों का है कि जो लोग प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, खासतौर से जो लोग जिम करते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, भर भर के प्रोटीन लेते हैं, उन लोगों की किडनी पे काफी प्रेशर पड़ता है। कई बार देखा नहीं गया है पहले कि मैं उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोग नेटली टी लेकर के उस प्रोटीन से जो डैमेज हुआ उसको ठीक कर सकते हैं क्या? आई थिंक हम दो मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे थे अबाउट किडनी डिजीज जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से आता है, राइट? राइट और राइट। जिनका 20-25 साल पुराना है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, और जो बहुत दवाइयां खाते हैं, जिसे हम अक्सर देखते हैं कि जिनकी जरूरत ज्यादा होती है उनको दो दो मेडिसिन दी जाती है फॉर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज कंट्रोल, और फिर भी उनके ब्लड प्रेशर और शुगर्स कंट्रोल नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए हम ऐसे ब्रूज को रेकमेंड करते हैं और डाइट में चेंजेस लेकर आते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, योगा लेकर आते हैं, तब जाके उनमें हम ये इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं। तो ये एक अलग पॉपुलेशन हो गया। फिर आपने बताया अबाउट द जिम पीपल, हाँ, जो ज्यादा प्रोटीन्स देते हैं फॉर बेटर मसल बिल्डअप, और दे फील कि मुझे ज्यादा वेट लिफ्टिंग करना था, आई शुड यूज मोर वेट्स, तो मोर प्रोटीन्स लेते हैं, देखिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, एंड दे आल्सो हैव मोर देन 6-12 एग्स, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉन वेज प्रोटीन्स। तो डेफिनेटली अगर आप ज्यादा प्रोटीन्स लेते हो तो आपके किडनी का जो फंक्शन है उस पर बोझ तो आने ही वाला है। पर मैं समझती हूँ कि अगेन जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जो जिम में जाते हैं फॉर अ बेटर बॉडी, उनको भी एक क्लिनिकल डाइटिशियन से, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। डू नॉट गो बाय ट्रेनर्स एंड quacks यस, promoting bodybuilding on any social media अपनी handles। जितनी जरूरत हो उतना ही प्रोटीन लेना नहीं, चाहिए एक आप और नहीं, गाइडेंस में लेना मैं समझती हूँ कि आपके बॉडी का स्टेट, जैसे मैं तो बहुत ही बार लोगों का ब्लड प्रेशर से लेके बॉडी फैट कंपोजिशन से लेके कहाँ पर ज्यादा फैट है, बेली पर है, हिप्स पर है, अपर बॉडी पर है, बॉडी कंपोजिशन देखती हूँ। देन आई ऑल्सो गेट सम इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट डन। तो अगर मुझे कोई, मैंने बहुत बार देखा कि बंदे को पहली बार हमारे ब्लड टेस्ट करने पे उनका डायबिटीज पता चला है, या उनको पता चला कि उनका क्रेटिन 2 पर है, दे आर नॉट इवन अवेयर, पीपल आर सो इग्नोरेंट, वो सिर्फ खा लेते हैं, इसने बताया उसने बताया, उसकी डाइट किसकी डाइट, एंड देन आपका डैमेज, आपकी बॉडी और आपका प्रॉब्लम। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार बिफोर यू डू सच different things which can challenge your body, which can trouble your body, I think एक बार एक qualified clinical dietitian से मिलना जरूरी, ताकि आप बीमारियों से बच सको, बीमारियों को रोक सको, और अगर कुछ बीमारियां शुरू हुई है तो उनको आप रिवर्स कर सको। तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड रिवर्स, so that you're not in more trouble, because see, when you are sick you are in trouble, your family will be emotionally stressed, you are in financial stress, इतना तकलीफ क्यों? थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, केयर, क्या बोलेंगे थोड़ी सी उसको, केयर केयर, कर ले या थोड़ा सा केयर। तो हेल्थ इज द वन। सावधानी बेस्ट इज सावधानी। गेट अलर्ट, गेट अवेयर, गेट एम्पावर्ड, गेट एजुकेटेड। यू शुड बी एजुकेटेड विथ इंफॉर्मेशन, सो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म चॉइस कि क्या ये करूं, क्या ये नहीं करूं। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने आप एक्सपेरिमेंट कर लिया। If you have a qualified person, the person will tell you, look, this is max where you can go, this is minimum where you can go, and do not go beyond that. Like I tell a person, as per your body weight, आपका इतना प्रोटीन बस हो गया, ज्यादा क्यों करना है? जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया ये हॉर्मोन्स ले लो, इतने आप डबल टेबल प्रोटीन्स पी लो। अ लिटिल बिट ऑफ केयर, थोड़ी सी सावधानी बहुत लंबा चलती है आपके साथ। योर बॉडी यू गेट ओनली वंस, यू गॉट टू लिव बाय द बॉडी, यू डोंट लुक फॉर स्पेयर पार्ट्स, राइट? कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि नेटलीफ की डोज क्या होनी चाहिए? क्या एक कप डेली मॉर्निंग में लें तो वो काफी रहेगा, या 2 या 3 बार भी ले सकते हैं? पेशेंट टू पेशेंट होता है ना मनोज जी। जैसे मैंने कहा कि जो मेरा सीकेडी पेशेंट, उनको तो मैं बता दी थी कि आप ना, जैसे कि आप ले लो 800 ml पानी, जो उनका रिक्वायरमेंट होता है पानी का एज पर द डॉक्टर।
तो अगर मैंने 800 ml पानी लिया, मतलब कि 4 ग्लास, तो आई विल से जस्ट पुट 2 टेबल स्पून, उसको उबाल लो विथ अ पीस ऑफ सिनेमन और उसको पी लो। दिन में 2-3 बार पी लो उसको। As easy as that. See, like if I give rosemary, some people won't drink it, like a rosemary का decoction. कुछ लोगों को मैंने in my recipes on the YouTube दिखाया है, आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने बताया कि उसको आप सिर्फ थोड़ा सा क्रश करके add it to your salad, add it to your stir fry vegetables. It is wonderful. Add it to your smoothies. It's wonderful. Impact is there and the change is noticeable. Right. Did I clear आजकल the question? हार्ट की भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है मैडम। तो अगर ऐसे पर्सन जिनके हार्ट पे प्रेशर है, जिनको हार्ट लगता है कि बहुत मजबूत नहीं है और वर्क प्रेशर भी है, खान पान में भी प्रॉब्लम रहती है आजकल, हम लोग फैटी फूड ज्यादा खाते हैं और न्यूट्रिशियस फूड कम खाते हैं। तो ऐसे लोग क्या हिबिस्कस टी रेगुलरली ले सकते हैं? उनको उससे फायदा होगा? डेफिनेटली आई हैव मैंने हिबिस्कस का बड़ा इस्तेमाल किया है एंड आई फील वंडरफुल है। जिन लोगों का, जैसे कि मैं देखती हूँ कि थोड़ा एलिवेटेड होता है कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर, तो अगर वो मेरे ही पास फर्स्ट टाइम अवेयर पेशेंट्स हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि आप ना अच्छी डाइट के साथ साथ इन चीजों का इस्तेमाल कर लो। लाइक आप अगर हिबिस्कस का ब्रू बता देते हो तो 2 बार ही पी लो हिबिस्कस। हिबिस्कस का ब्रू का टेस्ट लिटिल खट्टा भी है, तो इफ यू ऐड लिटिल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी या यू पुट सम 1/4 टीस्पून cinnamon पाउडर, द इम्पैक्ट इज मोर वंडरफुल टेस्ट भी, और यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन द कोलेस्ट्रॉल। जैसे मैंने देखा है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके ब्लड को थिक करके व्हाट गिव्स यू एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वहां पर भी इसको ये रिवर्स करता है। इट इज वंडरफुल। हिबिस्कस का इस्तेमाल करें और देखें कि इम्पैक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर एंड द कोलेस्ट्रॉल। बट वंस अगेन प्लीज कनेक्ट विथ अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आपकी डाइट को ठीक करना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल ये मत सोचेगा कि मैं क्रोइजो खा लूं, मैं बड़ा पाव समोसा खा लूंगा, मैं पेस्ट्रीज खाऊंगा, मैं हार्ड ड्रिंक्स पीऊंगा और फिर अगर मैंने हिबिस्कस पी ली और सब कुछ नलीफाई हो जाएगा। दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। डैंडिलिन के बारे में कोई पूछ रहा है तो डैंडिलिन रूट, हाँ, Fiction. ये भी एक अच्छी चीज है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर लिवर डिजीज। जैसे मैंने कहा कि आई थिंक इन द लास्ट 5 years आई हैव सीन मोर देन 1500 पेशेंट्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज, और उसमें से काफी तो होते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अल्कोहल नहीं पीते हैं फिर भी लिवर डिजीज हो रहा है, तो उनके लिए डैंडिलिन रूट कैन बी गिवन, उसका ब्रू बना के पी सकते हैं। यस मैडम, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हमारे नेचर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसको कि हम लोग नहीं यूज करते हैं। अगर वो यूज करें तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। तो डेंडेलियन आपने सही कहा कि वो भी उनमें से एक हर्ब है। एक मैं हिबिस्कस की बात कर रहा था तो मुझे याद आया कि वो बड़ा अच्छा ब्रू जब उसका बनता है तो बड़ा पिंक कलर का बड़ा अच्छा सा ब्रू बनता है और उसका टेस्ट भी बड़ा मीठा, खट्टा मीठा सा बड़ा अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से दैट्स अगर इट। कोई शुरू करेगा तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं कभी लाइफ भर, पूरी लाइफ मैं में, ये कि कहती हूँ इतना बढ़िया आपने टेस्ट है इसका। शायद आपका एक्चुअली भी ना सही एक्सपीरियंस, सही आपके क्लाइंट्स का भी सही सही एक्सपीरियंस। सही तरीके से अगर बनाने सीख जाए, बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, आप पानी को पहले उबलने दें। वो जब उबल जाए उसमें ये डाल दो, आपके ड्राई लीव्स है या फ्लावर्स है, जैसे कामोमाइल है, हिबिस्कस की फ्लावर्स हैं, फिर आपके रोजमेरी वगैरह लीव्स है, डैंडेलियन रूट है, तो उसको डालने के बाद में आप कवर द लिड और उसको फिर बंद कर दो। एक 10 मिनट के बाद उसको आप जब छान के पे, तो द फ्लेवर्स आर रिफ्रेशिंग एंड दे आर रियली ग्रेट। मैडम, और कोई एनेक्डोट या कोई और ऐसा एक्सपीरियंस जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, जो बत, मतलब क्योंकि ये तो हर्बल टी का तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है इसमें, मैं लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता ही नहीं है कि इतने बढ़िया हर्बल टीज हमारे वर्ल्ड में मौजूद है, हमारे नेचर में है, जिसको कि अगर हम यूज करें तो हमें काफी फायदा हो सकता है। मैं तो यही कहूंगी कि आजकल के जमाने में जब रैट रेस है और इतना सारा फियर है ना, आजकल लास्ट 2 years पैंडेमिक का जो 2 साल निकला है, इतना फियर साइकोसिस, और लोगों ने इसकी उसकी बात सुनकर भी बहुत बहुत सारे उकाले बना बना के पिए थे, जैसे कि ना सारे गरम मसाले एक साथ बना बना के पी लेना,
तो मैं कहती हूँ कि अगर हम समझ के करते हैं तो उसके आपको गुड इफेक्ट्स ही होते हैं। और मैं समझती हूँ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें आपके प्रोटीन्स की प्रॉपर आपने एडिक्वेसी पे ध्यान दिया है, आपके विटामिन मिनरल्स, फ्रेश फूड्स, जितनी भी चीजें आप फ्रेश खाते हैं, नॉट प्रोसेस्ड, जो आप लेकर आते हैं और उसको कुक करते हैं। देखो जो पैकेज होता है उसमें होते हैं बड़े सारे केमिकल्स। आप अगर अच्छे फ्रेश फूड्स लाके उसको बनाकर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी डाइट, और फिर आप ले आते हो ये हर्ब्स, जो हर्ब्स अगर आप यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ से योर, अभी एक हमारे पास पेशेंट थे जिनको वो कहते थे कि अगर मैं अल्कोहल नहीं पीऊं तो आई कैन नॉट स्लीप। ओके, ही इज आई कैन नॉट नेम हिम बट बड़े ही फेमस है। तो उनको मैंने यही बोला कि आप अभी कामोमाइल का ब्रू पीने शुरू कर दो। तो वो खुद कह रहे थे कि अब मेरा जो रिक्वायरमेंट था ऑफ अ हार्ड ड्रिंक हैज कम डाउन जस्ट अबाउट 60। सो एंड ही वाज अ केस ऑफ अगेन ग्रेड 3 फैटी लिवर जो माइल्ड पर आ गए हैं। तो आई थिंक दिस वाज वन गुड एग्जांपल, जस्ट रिसेंटली हुआ ये। he was so sick that he said कि I couldn't even go to work, I felt so sick। और इतनी दवाइयां। तो मैं कहती हूँ कि देखो आपके खुद के जो ऑर्गन्स है, मेनली लिवर, किडनी, हार्ट, अगर आप इन पर ही ध्यान दे दें और अपने आप को विथ नेचुरली अवेलेबल हर्ब्स, हमारा अपने यहाँ जो नेचुरोपैथी इज हर्ब्स वेरी है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छी है। जो जो अपने जो वाइल्ड एनवायरनमेंट है, स्पेशली कश्मीर का और नॉर्थ का, हिमालयस का, वो हाँ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है जहाँ पर कि हमें बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हर्ब्स मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बेस्ट न्यूट्रिशन में हमारी जो 3 हर्ब्स हैं वो कश्मीर से आती हैं। जैसे नेटल लीफ है, हिबिस्कस है, टिंडेलियन है, ये हमारी कश्मीर से आती है। कैमोमाइल हम उत्तरांचल से लेते हैं। रोजमेरी साउथ से आती है। तो ये सब हम उन एरिया से कलेक्ट करते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री है। इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है। मैडम एक चीज और आपसे पूछना था कि आपने तो काफी साइंटिफिक स्टडीज पढ़ी हैं, तो आपको इन हर्ब्स के बारे में क्या साइंटिफिक स्टडीज मिली हैं और क्या कहती हैं साइंटिफिक स्टडीज, क्या एस्टैब्लिश करती हैं? साइंटिफिक स्टडीज कैसे होता है ऐसी चीजें, अगर मैंने आपको बता दिया कि मेरा ये पेशेंट अच्छा हो रहा है, बट इसके बेसिस पे तो आप बेनिफिट्स को नहीं जानेंगे। अब साइंटिफिक जो रिसर्च, जो डेटा है, जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट है, न्यूट्रिशन के भी हैं, फूड साइंस के भी तरह पीपल जो कल रिसर्च करते रहते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि हमने अगर इतना अमाउंट दिया तो इसमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि रोजमेरी में यू हैव कार्नोसोल, कार्नोसिक एसिड, यू हैव रोजमेनॉल। सो ये जो है ना, दीज आर वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये लोग इनके जो होते हैं ना बायो एक्टिव कंपाउंड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। वो रोजमेरी में एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स है, हिबिस्कस में कुछ और है, डैंडेलियन में कुछ और है, नेटल लीफ में कुछ और है। तो ये दीज आर स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। सो दीज विल, देयर आर फिनोलिक कंपाउंड्स, देयर आर फिनॉल। सो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपको डिजीज को बढ़ने से रुकाते हैं और आपको क्योर करते हैं। ये स्लो होते हैं, बट अगर आप उसको बराबर यूज करते आएंगे विद गुड न्यूट्रिशन एंड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल विद एक्सरसाइज, तो आप अपने बीमारी को जाता हुआ देख सकते हैं। अगेन एक कॉशन है, जो हमारे सिवियरली जो डायबिटिक्स और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं, या प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को कभी भी कोई भी हर्ब डॉक्टर्स को पूछे बिना नहीं लेना है। अगर आपके पास कोई क्वालिफाइड डाइटिशियन हो या कोई जानकार डॉक्टर है जो इसके बारे में समझते हैं, तो उनकी सलाह से ही लेना ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज कभी कभी हम ज्यादा कर देते हैं, बिकॉज इन इंडिया हमने देखा है कि अब्यूज इज वेरी इजी। कोई भी चीज का, जैसे कि मैंने किया तो नेबर ने भी किया, पर उसने कैसे किया, ज्यादा कर लिया। तो आई ऑलवेज से कि गो बाय ऑथेंटिक एडवाइस, learn to use them rightly, be diet wise, be healthier in your lifestyle, work on your sleep wake patterns। और आप तो लाइक नेटल लीफ के बारे में बताना चाहूंगी बिफोर वी वाइंड अप। एक स्टडी देखा था कि इट इज अ वंडरफुल गैलेक्टोगोग। जैसे गैलेक्टोगोग मतलब कि जो महिलाएं जो
स्तनपान करती हैं, बच्चे को जो दूध पिलाती हैं, तो अगर किसी का मिल्क आउटपुट कम है तो उन लोगों को भी नकली लीफ का उकाला दे सकते हैं. तो अगेन आई वुड से डू इट विथ सुपरविजन. आपके हर्ब्स, आपके स्पाइसेस कैन बी मेडिसिनल, उनमें दवाई वाले वैल्यूज हैं, उनको ढंग से यूज करें ताकि आपको थेराप्यूटिक. मैं हमेशा कहती हूँ कि functional foods used under the guidance of the right qualified person can be therapeutic. कुछ culinary यूज भी है इन हर्ब्स का, जैसे रोजमेरी सलाद ड्रेसिंग की तरह यूज हो जाती है, कुछ सलाद में डालते हैं. और जैसे आपने बताया नेटल लीफ टी, पहाड़ों पे तो लेडीज चटनी बना करके यूज करती हैं नेटल लीफ टी की. कुछ लोग बालों में लगाते हैं जिससे कि उनके बालों को फायदा होता है. इस तरह के भी बहुत सारे यूजेस हैं इनके. we are also doing it personal fund पे. रोजमेरी का हमने भी पौधा लगाया हुआ है और उसके अगर हम वैसे मिलता है इन ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट, रोजमेरी के लिए मिल जाते हैं, तो उसको आप काट के भी डाल दो सैलेड के अंदर या स्टर फ्राई में डाल दो, या उसको पानी में बॉईल करके उसका आप स्प्रे कर दो अंदर स्कैल्प. आपका डैंड्रफ बहुत हद तक कम हो जाएगा. अगेन इनमें है ये फिनोलिक कंपाउंड्स, इनमें है ये एसेंशियल फैटी एसिड्स. यहाँ तक का ये जो नेटल लीफ है इसमें तो है अमीनो एसिड लाइसिन. तो ये आपको फायदा करेगा ही करेगा, नुकसान तो बहुत कम देखा है मैंने किसी का भी. सो यूज इट वेल. जैसे एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, एक और एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको. आपने कहा था अबाउट culinary skills. I use a lot of rosemary, oregano, dry. Just rub it between the leaves onto my soups, into my salads, into my stir fries, and the taste is awesome. The flavors are wonderful. Right. तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बेसोस न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, उनमें ये हर्ब्स आती हैं और इसकी वेबसाइट का लिंक आपको कैप्शन में मिल जाएगा इस लाइव सेशन के एंड में. एक क्वेश्चन और है कि ये रोजमेरी को रमजान डाइट में भी यूज किया जा सकता है? डेफिनेटली. रोजमेरी आपको जैसे कि आई कैन टेल यू कुछ और रमजान डाइट में कुछ और आप बताना चाहें? रोजमेरी का जिसने पूछा है उनके लिए, अगर आपने रोजमेरी सुबह के टाइम पे पी लिया इन योर सुहूर और सहरी, आई थिंक आप अगर काम पर जाते हैं तो इट विल कीप यू वेरी मेंटली एजाइल एंड एक्टिव. या कुछ लोग ना इफ्तार जब करते हैं, दे वांट टू हैव अ ड्रिंक, दे कैन हैव मेक इट लाइक एन आइस टी. रोजमेरी को उबाल के उसको छान के विथ लिटिल बिट ऑफ चिया सीड्स आप उसको पी सकते हैं, लाइक अ वेरी गुड इफ्तार ड्रिंक. And I think I want to mention about hibiscus. Yes, hibiscus is wonderful. It has anti-tumor properties. उसमें जो antioxidants हैं, hibiscus जो शू फ्लावर है, रेड या येलो या वाइट, उसका जो अभी आपके यहाँ तो ड्राई मिल जाता है, इवन फ्रेश, उसका जो जेल भी है, आप उसको अगर यूज करते हैं एज पार्ट ऑफ योर सैलेड्स, आप उसको काट के भी खा लो, उसका उकाला पी लो. इट इज वंडरफुल फॉर कैंसर्स. आई थिंक उसके बारे में भी अगर कोई फैमिलीज में ये है प्रॉब्लम्स, दे कैन think of using these things. It will help them. Very good. आपने अपना बहुत समय निकाला. आप, मुझे पता है आप बहुत बिजी रहती हैं, इतना समय निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने समय निकाला, हम सब लोगों के से बात की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. Thank you so much. Pleasure being with you all. फायदा हुआ होगा आपसे बात करके. Thank you very much. मुझे तो अच्छा लगा, मैंने काफी सारे पेशेंट्स को देखा है. So all my patients, my ex-clients were still following me. I'm so happy that many have joined. It really feels nice, gratifying that people come together and they want to learn and enrich. I wish you all a very happy Ramadan and wish you a very happy and healthy life. Learn to look at good nutrition, balanced lifestyle, and stay healthy, disease-free. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you all.